Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum boys. Welcome to Peshawar Model School Boys 3 Science online class for class 4 Unit 6 Solids, Liquids and Gases. Our today's task is about summary of Unit 6 book exercise question 1 and 2 on book page 65. Matter. As we have learned in the previous lessons about the matter, anything which occupies space and has mass is called matter. हर वो चीज़ जो जगह घेरे और वज़न रखे उसको हम मास कहते हैं, मैटर कहते हैं. Anything which occupies space and has mass is called matter. There are three states or phase of matter: solids, liquids and gases. Matter may be solid, matter may be liquid, matter may be gas. These are the three states or phase of the solids. Solids have definite shape and definite volume. Liquids have no definite shape but have definite volume. Gas has no definite shape, no definite volume. Matter is made up of tiny particles. All the matter is made up of tiny particles. These tiny particles are called atom. Particles of matter are in constant motion. They are not fixed at their position. They always move about their positions. Some move at their own place, some move from one place to another, some goes far away from each other. These are the types of motions which are present in matters states. Particles of matters are held together by very strong electric forces, and there is a kind of attractive forces between them. Just like a magnet just as it attracts iron towards itself, same kind of attraction is present between the particles. They attract with each other, they pull each other. There are empty spaces between the particle of matter. All the phases of the matter have space between the particles. Solids have no space, liquid has space, and gases has too much space. So the particles where there is available space, they move away from each other, they go freely from each other. Each substance has unique particle different from the particles of a substance. Each substance has unique particles. As in the case of solids, particles are closely arranged. In liquids, particles free to move and they slide over each other. On the other hand, gases, particles move far away from each other. Temperature affects the speed of the particles. If we give heat to the particles of the solids, they start moving from their position, and the solids start slowly melting, and it comes into the stage of liquid. So matter बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से बना है जिसको हम एटम बोलते हैं. ये पार्टिकल्स ऑलवेज़ जो है वो मोशन में होते हैं, अपनी जगह पर फिक्स नहीं हैं, बल्कि अगर जो अपनी जगह पे पड़ा हुआ भी है, जैसे इन द केस ऑफ सॉलिड, तो वहाँ पर भी पड़े पड़े वाइब्रेट कर रहा है, अपनी जगह पर आगे पीछे जो है वो मूव कर रहा होता है. लिक्विड्स में ये मूवमेंट ज़्यादा होती है क्योंकि स्पेस इन पार्टिकल्स के बीच में ज़्यादा होने की वजह से वो ज़्यादा आसानी से मूव कर सकता है, और गैसेस में ये पार्टिकल्स एक दूसरे से बहुत दूर दूर चले जाते हैं. इन पार्टिकल्स को आपस में जोड़े रखते हैं एक अट्रैक्शन की फ़ोर्स होती है जो इनके बीच में पाई जाती है, जो इन पार्टिकल्स को जो है वो अट्रैक्ट रखे हुए है. इन पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है, जिस तरह से सॉलिड में जो है वो बहुत क्लोज टुगेदर है, लिक्विड में लिटिल बिट स्पेस है, और गैसेस में जो है दे आर फॉर अवे फ्रॉम ईच अदर. हर एक स्टेट में पार्टिकल्स की डिफरेंट प्रॉपर्टी है.
सारे पार्टिकल्स जो हैं वो एक जैसे इन तीनों फेजेस में सॉलिड, लिक्विड और गैस में जो है वो बिहेव नहीं करते। हर एक फेज़ में इन पार्टिकल्स के का जो मूवमेंट है वो एक दूसरे से डिफरेंट होता है। जब हम इनको हीट करते हैं या इनको कूल करते हैं इन पार्टिकल्स को, तब वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं। सो टेम्परेचर जो है वो इनकी स्पीड को, इन पार्टिकल्स की स्पीड को जो है वो अफेक्ट कर रहा होता है। चेंजेस ऑफ स्टेट्स, substances can change from one state to another state. These changes occur by cooling and heating, condense, freeze, boil and melt. Liquid changes into gas, solids changes into liquid by heating, and on cooling gas changes into liquid. जिस तरह से भी मैंने आपको बताया कि टेम्परेचर का बहुत इफ़ेक्ट है। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो स्टेट में चेंज आएगा, सॉलिड लिक्विड बन जाएगा, लिक्विड जो है वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर हम टेम्परेचर को कम कर दें यानी उसको हम ठंडा कर दें, तब गैस लिक्विड में चेंज हो जाएगा, लिक्विड जो है वो सॉलिड में चेंज हो जाएगा। तो गैस टेम्परेचर जो है वो इन पार्टिकल्स की स्पीड को बढ़ाता भी है और इन पार्टिकल्स की स्पीड को कम भी करता है। अगर हम हीट देंगे तो पार्टिकल्स की स्पीड जो है वो बढ़ जाएगी, सॉलिड्स जो है वो मेल्ट हो जाएगा और फिर वो बॉयल करने लगेगा और फिर इसके बाद वो वेपर्स में चेंज हो जाएगा। अगर हम इन पार्टिकल्स को कूल करना स्टार्ट कर दें यानी इनकी जो एनर्जी है उसको हम कम कर दें तो गैस जो है वो दोबारा लिक्विड में चेंज हो जाएगा और लिक्विड फिर सॉलिड में जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा। तो इट्स मीन कि हीटिंग और कूलिंग जो है यानी ये दोनों टेम्परेचर के साथ रिलेटेड टर्म्स हैं। इनका इफ़ेक्ट जो है वो डायरेक्ट इनके स्टेट को चेंज करता है। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो स्टेट का चेंज आएगा, टेम्परेचर घटेगा तो भी स्टेट का चेंज जो है वो आएगा। लेट टेक्स द एग्जांपल ऑफ द वाटर। Now this is the ice, solid state of water. Now this is the liquid state of water and this is the gaseous state of water. इस सॉलिड के पार्टिकल्स का हम टेम्परेचर जो है वो बढ़ा देते हैं। इसको जब हम हीट करते हैं तब ये क्यूब जो है वो मेल्ट हो जाता है और वो लिक्विड कंडीशन में आ जाता है। लेकिन एक चीज़ का ख्याल है कि यहाँ पर नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स जितने हैं, मेल्ट होने पर भी नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स उतने ही रहेंगे। नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स जो हैं वो कम नहीं होंगे, वो बढ़ेंगे नहीं, बल्कि सेम नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स यहाँ पर आएंगे। इसी तरह से इतने ही पार्टिकल्स को यानी इस लिक्विड को जब हम मज़ीद टेम्परेचर देंगे तब ये बॉयल होगा और ये वेपर बना लेगा। ये वेपर्स जितने पार्टिकल यहाँ पर हैं उतने ही पार्टिकल्स जो हैं वो वेपर्स बनाएंगे और वो गैसियस स्टेट में चले जाएंगे। अब इसके ऑपोजिट हम अगर काम करें कि इस गैस को हम ठंडा कर दें, इसका टेम्परेचर हम कम कर दें, तब ये गैस दोबारा कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड में, वो ड्रॉप्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ये गैस जो है वो लिक्विड में चेंज हो जाएगा। अब मज़ीद ठंडा करने पर यही ड्रॉपलेट्स जो हैं वो सॉलिड आइस में कन्वर्ट हो जाएंगी। सो टेम्परेचर बढ़ाने पे भी स्टेट का चेंज आता है, फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड एंड लिक्विड टू गैस, और टेम्परेचर कम करने पर गैस जो है वो लिक्विड में और उसके बाद सॉलिड में जो है वो चेंज हो जाता है। नंबर ऑफ पार्टिकल्स एंड स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स। When substances change from one state to another, the number of particles do not change. जब किसी भी सब्सटेंस को हम गर्म कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं तो चेंज हो जाता है, वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चला जाता है। द नंबर ऑफ पार्टिकल्स डू नॉट चेंज although there is a change of the state, यानी सॉलिड जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया या लिक्विड जो है वो सॉलिड में गैस में कन्वर्ट हुआ है, स्टेट का चेंज आया है, बट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स डू नॉट चेंज, वो उतने ही होंगे जितना कि उस पर्टिकुलर सब्सटेंस में प्रेजेंट थे। एंड द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स चेंजेस, और इसमें जो चीज़ चेंज होती है, जो इसके स्टेट के चेंज होने की वजह से बन जाती है, वो नंबर स्पेस है, वो स्पेस है इन पार्टिकल्स का जो चेंज हो रहा है। यहाँ पे अगर आप इसको गौर से देखेंगे, सॉलिड में ये पार्टिकल्स एक दूसरे के बहुत करीब करीब हैं, लेकिन जैसे ही वो लिक्विड स्टेट में जाते हैं
पार्टिकल्स में स्पेस बढ़ जाता है, और फिर जब वो गैसियस स्टेट में जाते हैं तब ज़्यादा स्पेस आ जाता है। अब देखें यहाँ पे स्पेस लेस, नो देयर लेस स्पेस, देयर इज़ मोर स्पेस। इस स्पेस के चेंज की वजह से ही इनके जो हैं ये स्टेट्स बन जाते हैं, लेकिन नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑलवेज रिमेन्स द सेम। नाउ solid particles are compactly arranged, they are very close to each other, they vibrate at their own position। अपने ही पोजीशन पे आगे और पीछे जो वो मूव कर रहे हैं। सच काइंड ऑफ मोशन इन विच पार्टिकल्स मूव फॉर एंड बैकवर्ड, दिस काइंड ऑफ टू एंड फ्रो मोशन इज कॉल्ड वाइब्रेशन। टू एंड फ्रो मोशन ऑफ पार्टिकल इज कॉल्ड वाइब्रेशन, और वाइब्रेशन इज प्रेजेंट इन सॉलिड्स। एज यू हैव सीन इन दिस स्लाइड के सॉलिड के पार्टिकल्स जो हैं वो वाइब्रेट कर रहे हैं। नाउ द लिक्विड पार्टिकल्स हैव मच स्पेस एज कंपेयर टू द सॉलिड, so they move, they slide over each other, that's why there is no definite shape in liquids but they have definite volume। इसको आप जिस कंटेनर में भी डालेंगे, ग्लास में डालेंगे या जग में डालेंगे, तो वो उसी की शेप ले लेगा, अपनी कोई डेफिनेट शेप नहीं है। बट एट ऑन द अदर हैंड गैस पार्टिकल्स आर फॉर अवे फ्रॉम ईच अदर, एंड जितना स्पेस इनको अवेलेबल होगा वो उतनी ही स्पेस में अपने आप को एडजस्ट कर लेंगी। ये नहीं कि एक जगह पर बस पड़े पड़े रहेंगे, जितना स्पेस मिलेगा वो सारे स्पेस में अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट सॉलिड्स हैव नो डेफिनेट शेप एंड नो डेफिनेट वॉल्यूम। There are certain types of changes in these matters. There are two types of changes: physical change and chemical change. Physical change just bring the change in its shape. Just bring the change in its shape. Chemical change is a kind of change which totally change its original properties. It totally change original property and a new thing is made which is totally different from the original one. So there are two types of changes: physical change and chemical change. Chemical and physical changes, as you have seen in the below diagrams. Chemical change, a chemical reaction form new product, totally new thing is made. Once a fruit get rotten, you can bring it in its own original form. एक दफ़ा इस ये फ्रूट जो है वो रोटन हो जाए, आप उसको किसी भी रिएक्शन से दोबारा फ्रेश फ्रूट में चेंज नहीं कर सकते। सो दिस इज़ अ परमानेंट चेंज। केमिकल चेंज जो है वो एक परमानेंट चेंज है, इसको आप दोबारा अपने ओरिजिनल फ्रूट है उसमें आप कन्वर्ट नहीं कर सकते। यहाँ पर अपनी इस फ्रूट ने अपना टेस्ट, अपना कलर टोटली लूज़ कर देता है, और वो टोटली न्यू कलर के साथ, न्यू टेस्ट के साथ जो है वो इस रिएक्शन के नतीजे में जो है वो बन जाता है। सो परमानेंट चेंजेस आर कॉल्ड द केमिकल चेंजेस। इसी तरह से जब वुड को आप फायर में डालते हैं, ये वुड की बर्निंग हो जाती है और इससे जो है वो ऐश बन जाता है। ये ऐश आप दोबारा, ये हल्का होता है वज़न में, हवा से उड़ सकता है। वुड जो है वो भारी है, वो इसलिए एयर में जो है वो फ्लाई नहीं करता। सो टोटली न्यू थिंग इज़ मेड इन केमिकल रिएक्शंस। इसी तरह से रस्टिंग है जो आयरन को लगती है और इससे उसकी जो अपर शाइनिंग सरफेस है वो ख़त्म हो जाती है और ब्राउन कलर की जो डल सरफेस है वो उसके ऊपर आ जाती है। इसको आप ओरिजिनल प्रोडक्ट में दोबारा फिर चेंज नहीं कर सकते। Now, physical change, matter changes form but not chemical identity. In physical change, the matter changes its shape, but there is no chemical change, as you have seen in the diagram that ice cream melts. When it melts, you can put it in the freezer and again it will become solid. इसी तरह से बॉइलिंग वाटर है, अगर आप उसके ऊपर ढक्कन रख दें तो जितना भी वेपर्स बना होता है उसका जब हीटिंग अरेंजमेंट आप हटा लेते हैं, ढक्कन ठंडा होता है। यही वाटर ड्रॉपलेट्स जब इस ढक्कन के साथ टकराते हैं तो वो दोबारा वाटर ड्रॉपलेट्स में जो है वो चेंज हो जाते हैं। सो फिज़िकल में कोई न्यू थिंग नहीं बनती, सिर्फ चेंज आता है, उसकी शेप का, उसके स्टेट का चेंज जो है वो आता है। लेकिन केमिकल रिएक्शन में टोटली न्यू थिंग बन जाती है।
फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। फिजिकल चेंजेस आर मोस्टली रिवर्सिबल। फिजिकल चेंजेस जो हैं वो दोबारा अपनी कंडीशन में आ सकती है, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से अगेन सॉलिड एंड लिक्विड, इसमें कन्वर्ट हो सकता है। बट केमिकल रिएक्शंस आर नॉट रिवर्सिबल, ये इरिवर्सिबल जो हैं वो चेंजेस हैं। इसमें ओरिजिनल प्रोडक्ट की तरफ, ओरिजिनल रिएक्टेंट की तरफ जाना इनका मुश्किल हो जाता है। नो न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म इन फिजिकल चेंज में कोई न्यू सब्सटेंस नहीं बनता। ऑन वन और मोर न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म इन केमिकल चेंज, और केमिकल चेंज में नई चीज़ें जो हैं वो बन जाती हैं। द सब्सटेंस रिटेन इट्स केमिकल प्रॉपर्टीज़, इसकी ओरिजिनल प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं, उसका कलर कैसा है, उसका जो है वो साइज़ कैसा है, वो रिटेन रहता है। लेकिन यहाँ पर जो है वो टोटली न्यू थिंग जो है वो हमें मिलती है, जो अपनी ओरिजिनल प्रॉपर्टीज़ से टोटली डिफरेंट होती है। द न्यू सब्सटेंस फॉर्म हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ फ्रॉम द ओरिजिनल सब्सटेंस। एरोसल स्प्रे, दीज आर द इंसेक्ट रिपेलेंट स्प्रेज हैं, और इसके अलावा जो है पेंट की जो स्प्रेज हैं उसको भी हम एरोसल स्प्रेज कहते हैं। दे आर मेड फ्रॉम डिफरेंट केमिकल्स, और ये ऐसे केमिकल्स से बने हुए होते हैं जो कि इंसेक्ट्स को मारने के लिए इस्तेमाल होते हैं, या जो कलर्ड केमिकल्स हैं जहाँ पे पेंटिंग का काम हो रहा हो, ये उनमें इस्तेमाल होते हैं। They do not not only repel or kill the insect, but they also cause the air pollution. तो ये स्प्रेज जब एयर में रिलीज़ हो जाते हैं तो ना सिर्फ इंसेक्ट्स को मारने के लिए मारने का काम कर रहे होते हैं, बल्कि ये एयर को भी पोल्यूट कर रहे होते हैं। वो पर्सन, वो लिविंग थिंग जो इसके करीब होता है, मे बी कि उसको जो है उससे कोई एलर्जी लग जाए, सो ये जो है वो डेंजरस होती है, उनकी इम्यूनिटी पे जो है वो उसका इफ़ेक्ट पड़ता है। सो कम से कम इसका जितना भी पॉसिबल हो स्प्रे को यूज़ किया जाए। ऑयल, फैट्स एंड ग्रीस, oil, fats and grease do not dissolve in water, as you know that oil can not dissolve in water। वो उसके ऊपर इसी तरह से एक तह की तरह रहता है, एक फिल्म बना लेते हैं ऊपर, और उसमें वो तह की तरह जो है वो रह रहा होता है, वो उसके अंदर मुकम्मल तौर पर डिसॉल्व नहीं होता। इसका बड़ा जो है वो डिसएडवांटेज क्या है कि इसके अंदर से गैस जो है वो पास नहीं हो सकती। तो पानी के ऊपर अगर ये ऑयल रिलीज़ हो जाए तो पानी के नीचे जो रहने वाले फ़िश है, एल्गी है, उस तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचती, तो उनकी लाइफ जो है वो इससे इफ़ेक्ट हो रही होती है। क्योंकि ये वाटर में डिज़ोल्व नहीं होती, इसलिए ये ब्लॉकेज को भी जो है वो कॉज करते हैं। दे कैन ब्लॉक द ड्रेन्स, जो सीवेज के ड्रेन्स हैं जहाँ पे गंदे पानी की नालियाँ होती हैं, ये उसको भी ब्लॉक कर देती हैं। सो नेवर पोर ऑयल डाउन अ ड्रेन, इसलिए ऑयल को, ग्रीस को, फैट्स को जो है वो नालियों में नहीं फेंकना चाहिए। नाउ वी आर गोइंग टू डू द बुक एक्सरसाइज ऑन पेज 65। देयर इज क्वेश्चन नंबर 1, चूज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ स्टेट ऑफ मैटर। अब से फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि आपके पास जो नीचे 4 ऑप्शंस दिए हैं उसमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो स्टेट ऑफ मैटर नहीं है। सॉलिड, लिक्विड, ऑयल और गैस। सो द आंसर इज ऑयल। ऑयल इज़ नॉट स्टेट ऑफ मैटर। वी हैव 3 states of matter: solid, liquid and gas. ऑप्शन नंबर 2 है एवरीथिंग ऑन अर्थ इज़ मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स called everything on earth is made up of tiny particles called particles, parts, space और solids। बॉयज़ इसका आंसर जो है वो आपके पास है पार्टिकल्स। एवरीथिंग ऑन द अर्थ इज़ मेड ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। टाइनी पार्टिकल्स से ही अर्थ जो है वो बनी है। इन टाइनी पार्टिकल्स को हम एटम कहते हैं। सो गिव द आंसर पार्टिकल्स। सॉलिड्स इज़ नॉट द आंसर, इट्स आंसर इज़ पार्टिकल्स। ओके बॉयज़, मैं दोबारा बता रही हूँ कि एवरीथिंग ऑन द अर्थ इज़ मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड द पार्टिकल्स, और इन पार्टिकल्स का नेम जो है वो एटम है। यहाँ पर आपके पास ऑप्शन का आंसर जो है वो ए है, नॉट द D1। आइस, वाटर एंड वाटर वेपर्स आर मेड अप ऑफ वाटर पार्टिकल्स। सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस। कहते हैं आइस, वाटर और वाटर वेपर्स किससे बना हुआ है? वाटर पार्टिकल से बना हुआ है, लिक्विड से बना हुआ है, सॉलिड से बना है कि गैसेस से? सो इस आंसर इज़ वाटर पार्टिकल्स। द आंसर इज़ वाटर पार्टिकल्स। विच टाइप ऑफ मैटर हैज़ अ फिक्स शेप एंड फिक्स वॉल्यूम? Solids, gas, liquid or particles? So solid has definite shape and definite volume.
When wood is burned and turned into ash, what type of change has taken place? जब एक लकड़ी को जलाया जाता है तो उसकी राख बनती है, इस किस्म की चेंज को हम क्या कहते हैं? चेंज ऑफ स्टेट इसको कहा जाता है, केमिकल चेंज कहते हैं, फिजिकल चेंज कहते हैं, ये नन ऑफ दिस. इट्स आंसर इज केमिकल चेंज. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, मैटर इज मेड अप ऑफ dash. Matter is made up of tiny particles. Matter is made up of tiny particles. The particles in a dash are very close together. कौन सी स्टेट में particles very close together हैं? This is the solid. Solid state में particles are very close together. The dash in a liquid are packed लूजली. और लूज अरेंजमेंट किस में है? जहाँ पर कोई शेप नहीं है, डेफिनेट शेप नहीं है और वो फ्लो कर रहा है. दिस इज लिक्विड्स. द पार्टिकल्स इन अ लिक्विड आर लूजली पैक्ड. इन अ गैस द डैश बिटवीन द पार्टिकल्स आर बिगर. इन द गैस द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स आर बिगर. So you will have to fill these two exercise questions. Match the definition in column A with the correct term in column B. A change in which new substance are formed, it is chemical change. A change of state but no new substance are formed, it is the physical change. Everything in the world that has mass and occupies space is called matter. Now today's diary, do book exercise question 1 and 2 on page 65 of unit 6. Thank you boys.